وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ احد کا واقعہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب نکلے تھے تم صبح کو اپنے گھر سے بٹھانے کو ایمان والوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے، اور اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار بیٹھے، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے نکلنا تھا جنگ کے لیے، جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ بدر کی جنگ اس سے پہلے ہو چکی تھی، اور آپ یہ یاد رکھیے گا اس پورے پارے کو سنتے ہوئے کہ بدر کی جنگ میں کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی کامیابی دی۔ اب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو بدر میں نہیں گئے تھے، ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم بھی جاتے، ہمیں بھی شہادت اگر ہمیں مل جاتی تو شہادت کا رتبہ ملتا، اور اگر ہم واپس آتے تو ہمیں اتنا مال غنیمت ملتا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب احد کی جنگ پہ جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا، تو جو جوان بچے تھے نا، جو ینگ کراؤڈ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم باہر نکلیں گے، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ صحابی ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کے ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہمارا اپنا شہر ہوگا، تو ہم ادھر رہ کے جنگ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیادہ دیکھا کہ بچے، وہ جو ینگ کراؤڈ تھا، ان میں بہت جذبہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم باہر جا کے ہی جنگ کرتے ہیں۔ اور جب وہ وہاں پہ نکلتے ہیں تو 1000 کا لشکر لے کے جب وہ نکلے، تو راستے میں عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے راستے میں یہ کہا کہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں، ہم نے تو کہا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کریں گے، اب ہمیں یہ وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، ہم خود اپنے آپ کو مارنے جا رہے ہیں۔ تو وہ 300 لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا۔ اب انشاءاللہ جہاں جہاں سٹوری آتی رہے گی، میں آگے آپ کو بتاتی رہوں گی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں کہ جب وہ واپس گئے تو ایک دوسرا گروہ جو تھا، ایک اور قبیلہ تھا، ان کی بھی ہمت ٹوٹ گئی، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو 300 لوگ چلے گئے ہیں، ہم پہلے ہی کم تھے، اب ہم اور بھی کم ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل کو تسلی دی، اور پھر ان کو اس پہ جما دیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار تھا، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو، تو وہ واپس نہیں گئے تھے۔ اور بے شک مدد کر چکا تمہاری اللہ بدر میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے کہ بدر میں بھی تو تمہاری مدد کی تھی، جبکہ تم تعداد میں اتنے کم تھے۔ آج اگر تم تعداد میں کم ہو تو تعداد سے فرق نہیں پڑتا، تمہاری ہمت سے فرق پڑتا ہے، تمہارے ارادے سے فرق پڑتا ہے۔ جب کہہ رہے تھے تم مومنوں سے کہ کیا نہیں یہ کافی تم کو کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے، اور وہ نازل کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے۔ اب یہاں پہ کیونکہ وحی آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں ڈرتے ہو، وہاں سے 3000 کا لشکر آ گیا تو کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری 3000 کے لشکر سے مدد کرے گے، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اور آن پڑے تم پر وہ دشمن اچانک، تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے خاص نشان لگے ہو۔ دیکھیں کتنی تسلی ہوتی ہے نا کہ انسان کتنا بھی کمزور ہو، دشمن کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اللہ کا بندہ جو ہے نا، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو ایک مقام پہ جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی کیا وجہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خود موجود تھے، اور صحابہ کا ایمان بھی اتنا مضبوط تھا، تو پھر آخر کیا وجہ ہوئی۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر بشارت تمہارے لیے، تاکہ اطمینان حاصل ہو تمہارے دلوں کو اس سے، اور نہیں ہے نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے، تاکہ کاٹ ڈالے وہ ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل کر دے انہیں کہ بس لوٹ جائے وہ ناکام اور نامراد ہو کر۔ دیکھیے غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں اختیار کچھ بھی، یا وہ توبہ قبول کر لے ان کی، یا عذاب دے انہیں، بس بے شک وہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بخش دے گا وہ جس کو چاہے، اور عذاب دے گا جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये जो छोटी छोटी नेकियां है ना, इनको मोहब्बत से कबूल कर ले, क्योंकि वही बात कि जन्नत जो है वो हम अपनी नेकियों से नहीं जा सकते। हमारी जो छोटी छोटी नेकियां अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे खुश होकर उसके इवज़ हमको जन्नत अता कर देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ना खाओ सूद दुगना चुगना और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, ताकि तुम फलाह पाओ, और बचते रहो इस आग से जो तैयार की गई है काफिरों के लिए, और अतात करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और दौड़ो मगफरत की तरफ अपने रब की, और जन्नत की तरफ जिसकी वसअत है आसमान और जमीन के बराबर, तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। और वो लोग जो खर्च करते हैं आसूदगी में और तंगी में, और पी जाते हैं गुस्से को, और माफ करने वाले हैं लोगों को, और अल्लाह महबूब रखता है हुस्ने अमल करने वालों को। अल्लाह पर आप जरा गौर कीजिए कि वो लोग जो तंगी में भी खर्च करते हैं, अपने पास इतना नहीं होता लेकिन फिर भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, और जो गुस्से को पी लेते हैं। देखिए हमारे गुस्से आप देखें जरा, हमें कोई बात करके तो जाए ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिस वक्त इंसान गुस्से में आता है और वो अपना गुस्सा पी लेता है ना, उस वक्त आप देखिए कि हमारी कोई मंजिलें रुकी हुई अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली मंजिलों पे ले जाते हैं बंदे को। ये गौर करने वाली बातें हैं। और माफ करने वाले लोगों को कि उनकी जो गलतियां होती हैं, देखिए क़यामत के दिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होंगे, हमारे गुनाह हमारे सामने होंगे, और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी बख्शिश की बात करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि मेरा बंदा जब दुनिया में तुमसे माफी मांगता था तो उस वक्त तुमने उसको माफ नहीं किया, आज तुम मेरे सामने ऐसे खड़े हो, तो ये चीजें हमें इस दुनिया में अमल करके जाना है ताकि आखिरत में हम सरफराज हो सके। आमीन सुम्मा आमीन। और अब एक बहुत प्यारी आया जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो लोग जब कर बैठते हैं कोई खुला गुनाह, मतलब बड़ा गुनाह कर बैठते हैं, या कर गुजरे जुल्म अपनी जानों पर, मतलब अपने ऊपर गुनाह के काम करते हैं, चुगली लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या नाहक किसी का माल खा रहे हैं, कुछ भी जैसे गुनाह करते हैं अपनी जानों पर, तो याद करते हैं अल्लाह को, फिर माफी मांगते हैं। तौबा की बात है अपने गुनाहों पर, तो कौन है जो माफ करेगा गुनाहों को सवाए अल्लाह के, और नहीं इसरार करते वो इस पर जो उन्होंने किया और वो जानते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि गुनाह हो गए तो उनको परवाह नहीं है, वो इसरार नहीं करते उस पे, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तौबा के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कौन है जो उनकी तौबा कबूल ना करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी इन लोगों में शामिल कर दे, क्योंकि तौबा की तौफीक भी अल्लाह ही देता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये लोग हैं जिनका सिला मगफरत है उनके रब की तरफ से। बहुत दुआएं करें, मगफरत की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस माफ कर दे, तो फिर तो कुछ और क्या हम दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। और जन्नतें हैं बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, रहेंगे हमेशा वो इनमें, और उम्दा है अजर नेक अमल करने वालों का। आमीन सुम्मा आमीन। तब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक गुजर चुके तुमसे पहले बहुत से वाकयात, तो चलो फिरो तुम जमीन में, फिर देखो कि कैसा अंजाम होता है झुटलाने वालों का। देखिए जो कुरान में हम बार बार किस्से पढ़ते हैं, हजरत नूह का किस्सा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, हजरत लूत का किस्सा, तो हमने बार बार ये पढ़ा कि जिन्होंने अपने रसूलों को झुटलाया, जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उनके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात का इनकार कुरान की करते रहे जब वो वही लेके आते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वही लोग हैं जिनका अंजाम आखिर में दोज़ख है। और वो जो झुटलाने वाले हैं, चल फिर के देखो तो सही कि उनका अंजाम कैसे था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके साथ फिर इस दुनिया में क्या सलूक किया। इतनी आराम से कह देते हैं कि गुनाहों पे गुनाह कर रहे होते हैं, और फिर हमारे होता है कि जी अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह ने कुछ नहीं करना। आप देखें तो सही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब जो कुरान में नजर आता है। अब तो मैं इसीलिए उर्दू में पढ़ के आपको बता रही हूँ, क्योंकि यूजुअली हम जब कुरान पढ़ते हैं तो उसका तर्जमा हमें नहीं पता होता, तो हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या अहकामात दी हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये वाज़ेह तंबीह है लोगों के लिए, और हदायत और नसीहत है अहले तकवा के लिए, कि जो अहले तकवा है वो उनको अच्छे से पता है कि जब वो गुनाह के काम करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कैसा गजब होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ना दिल शिकस्ता होना और ना गम करना, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर लगा है तुम्हें जख्म तो बेशक लग चुका है उन लोगों को भी जख्म ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये बता रहे हैं कि जैसे
जंग बदर में तुमने उन लोगों को तकलीफ दी थी, थे तो वो इंसान ही, तो तकलीफ है। तो आज अगर तुम्हें जख्म लगा है तो क्या बड़ी बात है, उनको तुम इससे पहले जख्म दे चुके हो। और ये अयाम जमाना है कि बदलते रहते हैं हम उनको लोगों पर, और ताकि जान ले अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और बनाए तुमको गवाह, और अल्लाह नहीं पसंद करता जालिमों को। देखे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि दिन बदलते रहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त आता है। क्या वजह है? ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाए कि बुरे वक्त में हमारे ईमान का लेवल क्या है, हम सब्र करते हैं कि नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यही देखने के लिए बार बार हमें ये बता रहे हैं कि देखो जब अयाम बदलते हैं, जब अच्छे जमाने से बुरा जमाना आता है या बुरे जमाने से अच्छा जमाना आता है, तो ये सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये क्यों ऐसा है कि ताकि पाक साफ कर दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और नाबूद कर दे काफिरों को। क्या तुम समझते हो कि दाखिल हो जाओगे जन्नत में यूं ही? हालांकि अभी नहीं मालूम किया अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने जहाद किया तुम में से, और ना ही मालूम किया साबित कदम रहने वालों को। देखिए ऐसे नहीं जन्नत मिल ली। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अभी तो अल्लाह ने आजमाया ही नहीं है तुमको, अभी तो कोई ऐसी मुसीबत तुम पे आई नहीं है कि सब्र दिखा के तुम उसमें से कामयाब हो जाओ और तुम्हारी मंजिलें ऊपर चली जाएं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक तुम तमन्ना किया करते थे शहादत की मौत की इससे पहले कि मिले वो तुम्हें, सो यकीनन तुमने देख लिया इसको और तुम थे खुद देख रहे। और यहाँ पे क्या था कि पहले जो थे वो मुसलमान जो थे, जब अभी तक क्योंकि जंगें नहीं हुई थी, तो वो कहते थे कि हम भी जाएंगे, हम भी जंग करेंगे, हमें भी शहादत का दर्जा मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब वो वक्त आ गया है ना, पहले तुम्हें इतना शौक था, अब तुम दिखाओ कि जब तुम अल्लाह की राह में निकले हो, जहाद के लिए निकले हो, तो दुश्मन से मुकाबला करते वक्त तुम्हारे पांव ना उखड़े। और अब जो हम आया पढ़ेंगे ये बहुत प्यारी आया है, और यही आया है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वसाल कर गए तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन तलवार लेके खड़े हो गए कि जिसने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल कर गए मैं उसका सर कलम कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब पता चला तो जब वो आए देखने के लिए और उन्होंने हजरत उमर को देखा उनकी ये हालत है, तो वो फिर मेंबर पे गए और उन्होंने यही आयत पढ़ी। तो हजरत उमर कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था, आज मुझे ये लगा कि इस आयत को आज ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही किया है। और वो आयत कहती और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल, बेशक हो गुजरे हैं इससे पहले बहुत से रसूल, तो क्या अगर ये फौत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या फिर जाओगे तुम उल्टे पांव, और फिर जो फिर गया उल्टे पांव तो हरगिज नहीं नुकसान कर सकेगा अल्लाह का कुछ भी, और जल्द जजा देगा अल्लाह शुक्रगुजारों को। यहाँ पे एक और जो इसका शान नुज़ूल है वो ये था कि जब मुसलमान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दर पे खड़ा किया था कि वहां से उनको डर था कि पीछे से अगर कोई आएगा, तो ये एक ही जगह खाली थी जहां से डर था कि पीछे से दुश्मन की फौज आ जाएगी। वहां पे ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं 50 के करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उधर जमा खड़ा किया कि कुछ भी हो जाए, हमारी जाने भी निकल जाए, हमारी बोटियां भी चीलें उतार के ले जाए, तो तब भी तुम लोगों ने यहाँ से नहीं हिलना। अब हुआ क्या कि जब मुसलमानों ने शुरू में जंग हुई, मुसलमानों को फतह हो गई और दुश्मन भाग गए। जैसे ही वो भागे तो जो दरे पे लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने ये सोचा कि अब तो हमें फतह हो गई है। उनकी नीयत खराब नहीं थी, उन्होंने ये सोचा कि अब हमें फतह हो गई है तो हम माले गनीमत जमा करने शुरू करें, तो उन्होंने वो दरा छोड़ दिया। कुछ सहाबी ऐसे थे उन्होंने कहा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि किसी भी हालत में तुमने नहीं छोड़ना। लेकिन जो पीछे रह गए थे ना वो सिर्फ 10 थे। और अब हुआ क्या कि खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान जो थे वो अभी इस्लाम नहीं लाए हुए थे, वो उन्होंने जब पीछे से देखा कि दरे से लोग चले गए हैं तो उन्होंने पीछे से हमला किया। तो उस वक्त मुसलमानों के साथ जो उतनी बुरी शिकस्त उस वक्त उनको हुई, और वही वाकया आगे आ रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उस वक्त उनमें ये अनाउंस हो गया, एकदम से लोगों ने चीखना शुरू कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल पा गए हैं। तो वो सुनते ही सारों ने अपनी हिम्मतें खत्म कर दी। हजरत उमर जो है वो थोड़े जज्बाती भी थे, उन्होंने भी अपनी तलवार फेंक दी कि अब क्या फायदा जंग करने का, जिनकी खातिर हम कर रहे हैं वही नहीं रहे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जंग तुम उनकी खातिर नहीं कर रहे हो, तुम जहाद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन की हिफाजत के लिए कर रहे हो। तो जिन्होंने उनके लिए किया तो समझ लो कि वो चले गए, लेकिन जो अल्लाह के लिए कर रहा है तो अल्लाह तो हमेशा रहने वाला है। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और नहीं है इख्तियार किसी जान
को कि मर जाए बगैर अल्लाह के हुक्म के, लिखा है वक्त अजल का, और जो चाहे बदला अपने अमाल का दुनिया में तो हम दे देंगे उसको उसके बदला इस दुनिया पर, और जो चाहे बदला आखिरत में तो अता करेंगे हम उसको वहां, और अनकरीब सिला देंगे हम शुक्रगुजारों को। अब देखिए हमारी दुआओं को आप यहाँ पे चेक कीजिए कि हमारी दुआएं क्या होती हैं। अगर हमें दुनिया चाहिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो फरमा दिया कि जिसको दुनिया चाहिए उसको भर भर के दुनिया दे दूंगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ सिखा दी थी ना कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। सुब्हानहू तआला दुनिया में भी हमें हसन अच्छी चीजें दे और आखिरत में भी हमें अच्छी चीजें अता करना, आमीन सुम्मा आमीन। और अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला सहाबा की हिम्मत अफसाई कर रहे हैं कि देखो कितने ही हुए हैं नबी, लड़ते हैं जिनके साथ होकर अहले अल्लाह कसरत से, तो ना हिम्मत हारी उससे जो पड़ा उन पर अल्लाह की राह में, और ना बुज़दिली की और ना दबे, और अल्लाह महबूब रखता है साबित कदमों को। और अब आयत नंबर 147 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमा काना कौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और ना था उनका कौल मगर ये कि उन्होंने कहा कि ए हमारे रब माफ फरमा दे हमारे गुनाह और हमारी ज्यादतियां हमारे अपने मामलात में, और साबित कदम रख हमें और फतह अनायत कर हमें इन लोगों पर जो काफिर हैं। सो अता फरमाया उन्हें अल्लाह ने सिला दुनिया का और बेहतरीन अजर आखिरत का, और अल्लाह महबूब रखता है हुस्ने अमल करने वालों को।